Good morning. Myself Priyesh Jha, and I am chemistry teacher of Taksila Model Senior Secondary School, Faridabad. Today I am going to start a new topic for class 10th. And in the previous lecture we have discussed about sodium chloride, sodium hydroxides, bleaching powder, their preparation, properties and uses. And in this class, that is my 8th lecture, in which we will discuss generally preparation, properties and usage of sodium carbonate and sodium bicarbonate. First topic of today is sodium carbonate. Sodium carbonate, which is also known as washing soda, and its chemical formula is Na2CO3 and 10H2O. So the chemical formula of sodium carbonate is Na2CO3 10H2O, and sodium carbonate also known as washing soda. ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं? 10. इसलिए इसको हम और भी बोल सकते हैं डेका हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट. डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मतलब वाटर्स. सो डेका हाइड्रेट ऑफ sodium carbonates. So the chemical formula of sodium carbonate is Na2CO3 10H2O. It contains 10 molecules of water. And anhydrous form of sodium carbonate anhydrous form means absence of water, having chemical formula Na2CO3. जब एनहाइड्रस फॉर्म लेते हैं मतलब क्या है, उसमें वाटर सारे रिमूव हो चुके हैं. उसका फॉर्मूला कितना होगा? Na2CO3. और इसको हम और एक नाम जानते हैं सोडा एस. इसको हम क्या बोलते हैं? सोडा एस भी बोलते हैं. ठीक है, तो सोडा एस क्या होता है? व्हेन ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, the remaining portion known as soda S, having chemical formula Na2CO3, and it is obtained when Na2CO3 10H2O on heating. ये साइन किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डेका हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, अराउंड 373 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर होता है ये 373 केल्विन. तो होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रिमूव्ड हो जाते हैं. तो सिर्फ बचता क्या हमारा? Na2 प्लस 10H2O, और इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं. तो ये केमिकल फार्मूला होता है. इसका कॉमन नेम क्या हो गया? वॉशिंग सोडा. एंड सोडा एस क्या हुआ? व्हेन ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द हाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, द रिमेनिंग पोर्शन नोन एज sodium soda S. Next one is how sodium carbonate prepared. Formation of washing soda. So how generally washing soda prepared? So mainly there are 3 steps involved in the formation of washing soda. होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट NaCl when react with ammonia in the presence of CO2, it will form 2 compound. One is sodium carbonate
एंड अनदर इज अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन किससे रिएक्शन करता है, अमोनिया एंड CO2। तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इन सेकेंड स्टेप दिस अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग to give sodium carbonate plus CO2 प्लस H2O। तो ये स्टेप कौन सा होता है हमारा, सेकेंड स्टेप। दिस सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। एंड थर्ड स्टेप्स दिस सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव सोडियम डेका सोडियम बाइकार्बोनेट, सो डेका hydrate of sodium carbonate. So next Na2CO3 when dissolve in water they form NO2 plus H2O and this is known as washing सोडा। तो ये क्या हमारा प्रिपरेशन किसका है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड with ammonia and CO2 in the presence of water to form mainly two product, sodium bicarbonate and ammonium chloride. And this ammonium bicarbonate on heating to form sodium carbonate, CO2 and H2O. And this sodium carbonate further dissolve in water to give washing soda having water molecules 10. तो ये एक हमारा होल प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, और इसका एक पार्टिकुलर नाम होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, सॉल्वे प्रोसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। सो सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू हम जनरली कौन सा क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। Properties of washing soda. So there are so many properties of washing soda and few ones are, first one, it is crystalline in nature, मतलब crystalline transparent crystalline solid होते हैं। मेनली क्या होते हैं, crystalline solid। crystalline solid means having definite shape and definite volume. Generally solid divided into two parts, one is amorphous and another is crystalline, and crystalline solids are those solid having fixed geometry। तो ये क्या होते हैं, crystalline in nature होते हैं। next one, its aqueous solution generally dissolve in water when it's, ये ऐसे बोल सकते हैं, इट इज soluble in वाटर। जनरली होता क्या है, मेटल कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 जनरली क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एंड नेक्स्ट वन, इट इज बेसिक इन नेचर एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड थर्ड वन, इट हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टीज। जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, क्लींसिंग प्रॉपर्टीज की तरफ वर्क करते हैं, बिकॉज ये जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं डर्टी ग्रीस वगैरह को अपने अंदर क्या करते हैं, डिजॉल्व कर लेते हैं, और जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो ऑन मूविंग
विद वाटर, जो डर्ट वगैरह होते हो क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं और क्लिनसिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं किसको, क्लोथ को। तो ये भी क्या इसका प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन इज यूजेस। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। एक तो हमारा हो गया फॉर क्लींसिंग पर्पस, फॉर रिमूविंग डर्ट फ्रॉम क्लोथ सकते हैं। दूसरा, इन द फॉर्मेशन ऑफ पेपर, ग्लास, इनमें भी यूज होता है। थर्ड वन, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7, जो कि बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। तो ये क्या इसके यूजेज होते हैं किसके, सोडियम कार्बोनेट। एक तो क्या हो गया फॉर रिमूविंग डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स, दूसरा क्या हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ पेपर, ग्लास वगैरह, एंड इन द क्या होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। तो ये क्या इसके यूजेज हैं। सेकेंड टॉपिक इज बेकिंग सोडा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बेकिंग सोडा, जो कि हमारा जिसको क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इसका फार्मूला क्या होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जो खाना होता है ना जिसको सॉफ्ट बनाने में होता है, या अगर एसिडिटी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या होता है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउस बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड। So first one is formation of baking soda. How baking soda prepared? So generally when sodium carbonate react with ammonia in the presence of CO2 and water to give sodium bicarbonate प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया हमारा प्रिपरेशन किसका हो गया, बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा में क्या होता है, ये क्या होते हैं वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन का मीनिंग मैंने समझा दिया है, और इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। नेक्स्ट वन, इट्स सॉल्यूशन इन
वाटर इज बेसिक इन नेचर होते हैं, जो कि रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, बट इसकी एसिडिटी सॉरी बेसिडिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट वन इज एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। थर्ड वन इज एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट मीन्स अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है, तो देखते हैं। व्हेन बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग दे विल प्रोड्यूस Na2 CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो मेनली क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, और कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2। और ये जो गैस CO2 रिलीज होता है, यही क्या होता है, किसी भी खाने बनाने को, जैसे हम चने को उबालते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, तो मेन सॉफ्ट होने का मेन पर्पस क्या होता है, CO2 का रिलीज होना, जो कि एक फ्लफी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है उस ब्रेड वगैरह में, जिससे क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन भी होता है कि जब हम बेकिंग सोडा से कोई भी जो फूड मैटर सॉफ्ट क्यों लाते हैं, क्योंकि जब उसको हम हीट करते हैं तो जनरली क्या रिलीज होता है, CO2। तो CO2 जो रिलीज होता है वो क्या होता है, होल्स में बैठ जाते हैं और फ्लफी क्रिएट करते हैं, और फ्लफी क्रिएट होने के कारण क्या होता है, वो सॉफ्ट प्रोड्यूस कर देता है उसको। तो ये क्या होता है, एक्शन ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट इज यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। तो एक तो हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है पता है, जो एसिडिटी को कंट्रोल करता है। बट जैसे होता है क्या कि हमारे पेट वगैरह में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे एसिडिटी वगैरह क्या होता है, कंट्रोल कर जाता है। तो ये क्या वहाँ पे यूज कर जाते हैं। दूसरा क्या होता है, सेकेंड, इट इज यूज्ड इन फूड मेकिंग, यूज्ड फॉर फूड मेकिंग to produce softness in the compound. Third one, it is used as a fire extinguisher। जैसे कहीं पे आग वगैरह लगती है तो हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, तो यह जब फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या मेनली यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, एक तो हो गया एज एंटासिड्स, दूसरा फॉर मेकिंग फूड, एंड थर्ड वन एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो दीज आर द यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, ओके। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, एंड फॉर टुडे थैंक यू।